push English. I hope all you guys are good there, enjoying your summer vacations. And now, children, if you are liking the video, please do share and subscribe to my channel. Now, my family is an extended members of 380 subscribers. I want to grow this family, and this will only happen when you are going to spread it out by word of mouth to your near dear ones, to your juniors, to your friends. So, in this context, today I am going to begin with the supplementary reader Vistas, the first chapter, the third level. This is class 12th chapter, and normally children complain me about, ma'am, that this chapter is very complicated. So I have made it in a way that it becomes very easier and simpler to understand. So just to begin with, the third level is written by Jack Finney. He is an American writer and he is a specialist in thrillers, and he has written the works of sci-fi, that is science fiction. He was born in Milwaukee. So just an overview of the story, children. Overview is, there is a person 31-year-old whose name is Charlie. Then there is another character called Sam, who is actually a psychiatrist friend of his. And one more, just a reference of Charlie's wife, whose name is Louisa. So this is actually a psychological story. It is talking about a subway at Grand Central Station, that is New York. And then there is an interconnection between narrator's harsh reality and fantasy. So you can say that the story belongs to genre of time travel. Okay, children? So what is actually third level? Third level is, see, there are many definitions given to it. So it is a medium of escape through which a man yearns to be away from realities. Then third level is a railway station. It is a Grand Central Station at New York. So there are several things which we'll do, and at the end of the chapter I will be telling you the short answer questions and long answer questions, important long answer questions. Now coming on to the detailed clip of line to line explanation. So children, let us begin with the chapter now, and the chapter is third level, Jack Finney. So before we read this, have you ever experienced any curious or unusual experience that you had which other people don't believe? ऐसा कभी होता है कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया हो जो आप कहते हो कि भाई दूसरे बिलीव नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रहा है या ये पागल हो गया है. तो ऐसी ही कुछ स्टोरी लेकर मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन में दे चुकी हूँ. सो विदाउट मच अडो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. एंड द चैप्टर सेज दैट ये जो प्रेसिडेंट्स है न्यूयॉर्क सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेल रोड्स के, ये सारे के सारे बच्चे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के पार्ट्स हैं, उसके लेवल्स हैं. तो वो ये कहते हैं या वो ये कसम खाने के लिए रेडी है, वे आर रेडी टू स्वेयर, रेलवे टाइम टेबल्स की कसम खाने के लिए, स्टैक का मतलब टाइल होता है, कि सिर्फ दो ही हैं. सिर्फ दो क्या है? सिर्फ दो ही लेवल है. वो कसम खाने के लिए रेडी है कि इस स्टेशन पर सिर्फ दो लेवल्स हैं. लेकिन हमारे जो प्रोटैगनिस्ट है चार्ली जी, उनका ये मानना है कि नहीं, ये तीन है. और ऐसा इसलिए है, वो इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए भी कह रहा है बिकॉज वो उस थर्ड लेवल पे गया है भाई. और उसने भाई जब लोग उसे ये कहने लगे कि ये पागल हो गया, अजीब अजीब बातें कर रहा है, तो उस बेचारे ने उसके लिए भाई प्रिकॉशन लिया, स्टेप लिया, और वो अपने एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड के पास गया. ठीक है. और साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ने उसको भी उसने बताया कि भाई थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे. और इनके साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि जो चार्ली है उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई है. और ऐसा इसलिए है, इस स्टेट को उसने क्या कहा, उसकी इस बीमारी को उसने कहा, इट इज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट.
यानी खुली आंखों से सपना देखना, या कोई ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो पाई हो उसको हम सपनों में पूरा करता हुआ देखते हैं। और वजह उसने क्या बताई, क्योंकि वो अनहैप्पी है। तो ये सोचकर थोड़ा सा चार्ली को अजीब लगा कि भाई मुझे किस चीज का दुख है, मैं तो बिल्कुल खुश हूं। और खास करके उसकी वाइफ, चार्ली की वाइफ जिसका कि नाम लुइसा है, आगे आएगा, वो पागल हो गई। पागल इसलिए हो गई क्योंकि उसे लगा मेरा हस्बैंड अजीबोगरीब बातें कर रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया इसे। तो उसने, क्योंकि सामने ये एक्सप्लेन किया था लुइसा को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब जहां भी मैं ब्लैक से अंडरलाइन कर रही हूँ प्लीज उसको बहुत बहुत जरूरी है वो, और उसको बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है, ठीक है। तो उसका ये मानना था कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आजकल की जो दुनिया है, इसमें इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर है, वरी है, चिंता, दुख, टेंशन, युद्ध और बहुत सारी ऐसी इनसिक्योरिटीज है। तो चार्ली जो है इनसे एस्केप करना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तो भाई ये तो सच है, आजकल की जो दुनिया है वो वाकई में इससे भरी हुई है, और कौन इससे बचना नहीं चाहेगा। हर कोई चाहता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक रहे। आजकल का ही देख लीजिए जिस तरीके की नेगेटिविटी चारों तरफ है, कोरोना पैंडेमिक की वजह से हर तरफ से नेगेटिविटी आ रही है। तो हम वाकई में नहीं चाहते ऐसा माहौल, कितनी घबराहट होती है। खैर आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, तो यहाँ पढ़ते हैं हम। और हर वो कोई जो कि बचना चाहता है, तो वो ऐसे किसी थर्ड लेवल में नहीं घुस जाता जैसे चार्ली जा रहा है या चार्ली चला गया था। तो उसने तो ये कारण बताया, उसके दोस्त ने, फ्रेंड्स भी मान गए, ये भी मान गया भाई हो सकता है। उसके बाद उन्होंने एक और क्लेम किया। उन्होंने ये क्लेम किया कि चार्ली की जो स्टैम्प कलेक्शन करने की आदत है, ये भी तो एक टेम्पररी रिफ्यूज है रियलिटी से, सच्चाई से बचने का एक अस्थायी जरिया या शरण लेना। तो ये बचना चाहता है, इसलिए ये स्टैम्प कलेक्शन करता है। स्टैम्प कलेक्शन को बच्चों फिलैटली कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये आदत चार्ली के ग्रैंडफादर में भी थी, उन्हीं से शायद ये शौक चार्ली को भी मिली। लेकिन ग्रैंडफादर तो मेरे जिस जमाने में थी, और उस जमाने में कोई रियलिटी से बचना नहीं चाहता था, सब कुछ बहुत ही पीसफुल था, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था उस वक्त। उनके दिनों में तो भाई हर तरफ शांति, ट्रैंक्विलिटी, ब्रदरहुड, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कहीं कोई मर्डर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उसके ग्रैंडफादर का जमाना था, कम से कम भी 50 साल पहले की बात है, तो वाकई में चीजें काफी अच्छी थी। तो इसने भी स्टैम्प कलेक्शन शुरू कर दिया। अब उसने कहा ठीक है भाई, अच्छी कलेक्शन, मेरी आदत बहुत अच्छी है। मैं इसके पास यूएस इशू के, यानी कि यूएस स्टैम्प जो है 4 ब्लॉक्स है, इसने ऐसे 4-4 ब्लॉक इकट्ठे कर रखे हैं इसने। और फर्स्ट डे कवर्स भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हालांकि इस वर्ड का डेफिनेशन आपको पीछे मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ बता दे रही हूँ। फर्स्ट डे कवर्स में होता क्या था कि जो लोग इस चीज के शौकीन होते थे, वो एक खाली एनवेलप लेते थे, उसमें एक प्लेन पेपर डालते थे और उस पर स्टैंप लगाते थे, न्यू इशू जो भी होता था स्टैंप, और उसके बाद से उसे सेल्फ एड्रेस करके पोस्ट कर देते थे। उससे फायदा ये होता था कि पोस्ट मार्क, जो लोग स्टैंप कलेक्ट करते हैं उनको बड़ा शौक होता है जब, तो उनको जब आपके लेटर्स आते हैं तो आपने देखा होगा एक पोस्ट मार्क होता है जो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट लगाता है, उसमें डेट छपी होती है, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि किस साल का किस दिन का स्टैंप है। तो खैर वो होता है फर्स्ट डे कवर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो चार्ली ने कहा कि मुझे है आदत ठीक है, मेरे ग्रैंडपा को है ठीक है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को भी थी, तो क्या वो भी बचना चाहते थे किसी चीज से? खैर ये सारी बातें होती रही। उसके बाद से क्या हुआ, ग्रैंड सेंट्रल पे उसने बताया एक्चुअली वो हुआ क्या था उस दिन। एक रात जो है पिछले समर की बात थी, घटना बता रहे हैं हम चार्ली, और ये देर तक काम कर रहे थे अपने ऑफिस में। इन्हें जल्दबाजी थी भाई कि अपार्टमेंट तक पहुंचे जल्दी से जल्दी, और उसके लिए इनको ग्रैंड सेंट्रल से सबवे लेना था
क्योंकि उन्हें मालूम था कि भाई ट्रेन से मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा और बस से बहुत समय लगने वाला है। तो पता नहीं क्यों हुआ इसके साथ। इस चार्ली भी इस सवाल से परेशान है कि ये मेरे साथ ही क्यों होना था। मैं एक आम मामूली सा आदमी हूँ, ये नाम है इनका, और 31 इयर्स मेरी उम्र है। आपने पिछले आप पिक में देख रहे होंगे कि उसकी ड्रेस है, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि जिस ईयर का या जिस सेंचुरी को ये बिलोंग करता था उस वक्त क्या कपड़े चलते थे, क्या फैशन था। स्ट्रॉ हैट है, टैन गार्डोडाइन के सूट पहनना था, फैंसी बैंड पहनी हुई थी उसने, और ऐसे दर्जनों लोगों को उसने क्रॉस किया जो उसकी तरह ही दिख रहे थे। वो तो नहीं किसी चीज से बचना चाहते थे, तो मैं क्यों बचूंगा भाई। तो मैं सिर्फ अपनी पत्नी के पास जाना चाहता था, मुझे किसी चीज से नहीं बचना है, मैं अपनी पत्नी के पास पहुंचना चाहता हूं। और ग्रैंड सेंट्रल इसीलिए पहुंचा, वेंडरबिल्ट एवेन्यू से, जहां इसका ऑफिस था। उसके बाद से कुछ स्टेप्स उतरा जैसे स्टेशन पे, तो फर्स्ट लेवल पर आ गया, जहां पर बहुत सारी ट्रेनें जाती थी। ट्रेन के नाम लिए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी 28th सेंचुरी, ठीक है। और उसके बाद जब कुछ सीढ़ियां और नीचे उतरा तो सेकंड लेवल पर पहुंचा। यहाँ फ्लाइट का मतलब एरोप्लेन की फ्लाइट मत समझ लीजिएगा, यहाँ फ्लाइट का मतलब होता है स्टेयर्स, ठीक है, सीढ़ियां। तो सब अर्बन ट्रेन जो है यहीं से निकला करती थी। सब अर्बन का मतलब होता है आउटलाइन एरियाज ऑफ द टाउन। तो मेरी तरह बहुत लोग सफर करते थे। खैर, ये जब सेकंड लेवल पर पहुंचा तो ये एक आर्च डोरवे आया, एक रास्ता आया जहां से ये बस सबवे की तरफ ये बढ़ रहा है, और ये कहीं खो गया। और इतना इजी था, दैट्स इजी टू डू। क्यों इजी है वहां खोना? क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ये बच्चों बहुत बड़ा स्टेशन है, और ये कई बार गया है, हजारों बार गया है ये वहां पर, वहीं से ट्रैवल करता है। तो और अक्सर ऐसा होता है कि ये नए दरवाजे से लगते हैं, ये कहां से दरवाजा खुल रहा है, ये सीढ़ियां कहां है, ये कॉरिडोर्स कहां से, इतनी कंस्ट्रक्शन चलती रहती है और इतना बड़ा है। तो ऐसे ही एक बार ये एक टनल में घुस गया था जो 1 मील लंबा था, और ये एक लॉबी में बाहर निकला, रूजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर निकला। दूसरी बार 46 स्ट्रीट पर एक ऑफिस बिल्डिंग में ये अपने ऑफिस से 3 ब्लॉक बाद वहां पहुंचे। तो इस किस्म की अजीबोगरीब घटनाएं इसके साथ होती रहती थी। और ग्रैंड सेंट्रल को यहाँ ट्री से कंपेयर किया है बच्चों, क्योंकि एक ट्री की जैसे ब्रांचेस होती हैं उसी तरीके से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नए कॉरिडोर्स, नए स्टेयर केसेस थे, कॉरिडोर्स थे, और स्टेयर केसेस को रूट से कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वीडियो के एंड में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो आप प्लीज ध्यान दीजिएगा उन पर। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। तो ये लंबा सा जो टनल, इन्हें नहीं मालूम कि इस शहर के नीचे ऐसे कितने टनल बने हुए हैं, ठीक है। टाइम स्क्वायर वहां पर एक जगह है जहां पर टैक्सीज वगैरह खड़ी होती है, एक जगह है बहुत फेमस। और कभी कभी ये सेंट्रल पार्क, कभी टाइम स्क्वायर, इस तरीके की जगहों पर ये पाए जाते थे, इसी तरीके से टनल से होते हुए। ऐसा इसलिए भी होता होगा कि लोग ये मानते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल जो है उसको एक एग्जिट का रास्ता बताया गया है, निकलने का रास्ता, लेकिन उस एग्जिट के साथ इट इज अ काइंड ऑफ एस्केप ऑल्सो, एक मीडियम बन गया है ये बचने का। और शायद इसलिए मैं उस टनल में घुसा। लेकिन ये बात मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताई, मैं तो उसे ये लगता कि इसके साथ तो बहुत ज्यादा चीजें गड़बड़ हो रही हैं, तो ये तो पूरी तरह पागल हो चुका है। खैर, जिस कॉरिडोर से ये चल रहा था वो लेफ्ट की तरफ घूमने लगी, स्टैंड करने लगी, और जहां जहां जा रही थी उस कॉरिडोर पे चल रहा था, अचानक ये डाउनवर्ड्स की तरफ, नीचे की तरफ वो स्लैंट करती हुई सीढ़ियां गई, कॉरिडोर गया, और इसे लगा मैं कि कुछ गड़बड़ हो गई मुझसे, मैं गलत जगह पहुंच गया हूं लग रहा है।
बट ये वॉक करता रहा और इसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। सिर्फ क्या सुन रहा था? फुटस्टेप्स की आवाजें आ रही थी, लेकिन एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। और अचानक से इसको कुछ बहुत शोर शराबा सुनाई दिया। तो ये तो समझ में आ गया कि कोई ओपन स्पेस है, वहां लोग बात कर रहे हैं, इसलिए ये आवाज आ रही है। और जो टनल है वो लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ और ये फिर कुछ सीढ़ियां चढ़ा, थोड़ी सी सीढ़ियां थी और अब की बार 3rd लेवल पर पहुंच गया। ठीक है, So we were here. तो अब वो जैसे ही पहुंचा वहाँ पर तो इसी लगा भाई ये 2nd लेवल है, लेकिन ये देखता क्या है कि यहाँ पर ये कुछ डिफरेंस है बच्चों जो 2nd और 3rd लेवल के बीच में, तो ये पूरा मार्क कर लेना अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इस लेवल पे कमरे छोटे थे, बहुत ही कम टिकट विंडोज थे, कम ट्रेन गेट्स थे। इंफॉर्मेशन बूथ जो है वो वुड का बना हुआ था, पुराना था देखने में। बूथ में जो व्यक्ति बैठा हुआ था काउंटर पे, उसने ग्रीन कलर के आई शेड लगाया हुआ था, ग्रीन कलर का आई शेड पहना हुआ था और स्लीव ब्लैक कलर का स्लीव प्रोटेक्टर। आई शेड बता दूं मैं आपको, आई शेड एक्चुअली कहने के लिए आई शेड है, लेकिन एक्चुअली एक हेड गियर होता है, ठीक है बच्चों, सर पे पहनते हैं और वो आंखों को ढकता हुआ सर पे पहना जाता है। और स्लीव प्रोटेक्टर्स जैसे आप लोग हाथों को बचाने के लिए ग्लव्स पहनते हैं, और वैसे पूरी स्लीव्स बाजू को बचाने के लिए स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने जाते हैं। आपने देखा होगा स्कूटी वगैरह चलाते वक्त जो है आप पहनते हैं। अब भाई ये डिस्पोजेबल भी आते हैं, डॉक्टर्स भी डालते हैं, ठीक है, ड्राइवर्स भी पहनते हैं, बाइक राइडर्स भी पहनते हैं। तो लाइट काफ़ी डिम थी यहाँ पर और थोड़ी सी फ्लिकरिंग सी हो रही थी, मतलब जल बुझ रहा था। इसने देखा कि भाई ये फ्लिकरिंग इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स लगे हुए थे। तब इसकी समझ में आया, ओहो ये फ्लिकरिंग हो रही, तो ये मैं बना रही हूँ बच्चों, कुछ कोशिश कर रही हूँ ओपन गैस ट्रेन टाइप का बनाने का। होता लालटेन की तरह ही है और अंदर ये लौ जल रही होती है, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में इसी किस्म के लाइट्स होते थे स्ट्रीट में, ठीक है, ये फ्लेम होती थी। तो ये ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं। उसके बाद से हम चलते हैं कि अब मुझे लगता है कि ये यहीं पर ख़त्म करना चाहिए क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि हड़बड़ाहट में पढ़ूं। तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, इसको 2nd पार्ट में अच्छे से समझा दूंगी और जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया है। सो विद दैट, बाय बाय चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी। तो उस 2nd लेवल पर था, फ्लोर पर ब्रास स्पिटन्स। अब ये ब्रास स्पिटन्स क्या होता है बच्चों? ब्रास के बने हुए जो मेटल पॉट्स होते हैं, आपने देखा होगा, जिसमें लोग पीकदान, जिसको हम पीकदान बोलते हैं, थूकते हैं, उसे कहा जाता है स्पिटन्स। फ्लोर पे वो बना हुआ था। स्टेशन के पास जो है हल्की सी लाइट आ रही थी जो उसकी चार्ली की आंखों में चुभ रही थी। इसने देखा कि वो लाइट किस चीज़ की थी। वो व्यक्ति अपने पॉकेट में से गोल्ड वॉच निकाल रहा था और he snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. कवर खोला घड़ी का, वॉच को देखा, समय देखा और त्योरियाँ चढ़ा ली उसने। He started frowning, शायद टाइम देख रहा है अपने ट्रेन का। और उसने पहना क्या हुआ था? तो जैसे हमने चार्ली की ड्रेस के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है बच्चों, ये भी एक डिस्क्रिप्शन है, लेकिन ध्यान रखिएगा बिल्कुल अलग डिस्क्रिप्शन है। अलग इसलिए क्योंकि ये 1890s का डिस्क्रिप्शन है। समझ में आ रहा है? ट्रेडिशन, तब की ड्रेसेस कैसे होती थी, लोग क्या पहनते थे, फैशन क्या था। तो उसने डर्बी हैट पहनी हुई थी, ब्लैक कलर का 4 बटन सूट डाला था, लेपल्स थे लगे हुए और उसकी मूंछें बड़ी काली
और हैंडल बार मुस्टैचेस थी उसकी। चार्ली ने चारों तरफ देखा, तब उसको ध्यान में आया कि अरे यहाँ तो सारे जेंटलमैन जो हैं उन्होंने इसी किस्म का कपड़ा पहना, और ये कपड़ा तो 1890s में डाला जाता है। इसने कभी इतने सारे लोग ऐसे नहीं देखे थे, दाढ़ी रखे हुए, बियर्ड्स, साइड बर्न्स होता है जिनको हम खत बोलते हैं, किनारे की तरफ जो बाल होते हैं, और इतनी सारी मूछें। मतलब उस वक्त का शायद फैशन रहा होगा लंबी लंबी मूछें और दाढ़ी। आपने रेट्रो मूवीज़ में देखा होगा किस तरीके का फैशन होता है, हेयर स्टाइल कैसा होता है। और एक लेडी जो है वो ट्रेन गेट से चली आ रही थी, और उन्होंने जो कपड़े पहने थे उनका भी, उनसे भी पता चलता है कि उस वक्त लेडीज़ क्या पहना करती थी। लेग ऑफ मटन स्लीव्स थे उनके, और स्कर्ट पहनी थी, हाई बटन शूज़ थे। ट्रैक पर पीछे से, जहाँ से वो आ रही थी उसके पीछे ट्रैक पर चार्ली देखते क्या है, एक लोकोमोटिव उसकी एक नज़र पड़ती है। तो ये लोकोमोटिव जो है, ये इंजन जो है, ये बना हुआ है जिस कंपनी का है, करियर एंड ईव्स लोकोमोटिव कंपनी। उस ज़माने में, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा फनल शेप्ड इंजन्स होते थे। तो बड़ा अजीब लगा इसे कि मैं तो भाई 1890s का नहीं हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें क्यों दिख रही हैं। तो उसने इसको मेक श्योर करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, वो वहाँ पर अखबार बेच रहे बच्चे के पास पहुँचा और पेपर्स का जो पाइल था उसकी तरफ देखा। उसमें एक न्यूज़पेपर था, द वर्ल्ड, बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर। तो उसे कंफर्म हो गया कि भैया ये कुछ गड़बड़ है, मैं 1890s में पहुँच गया हूँ। क्योंकि जिस दुनिया में और जिस समय में वो रह रहा है, वहाँ पे इस नाम का कोई न्यूज़पेपर नहीं पब्लिश होता था, वो तो सालों पहले बंद हो गया था। तो खास करके इस न्यूज़पेपर में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की बातें छपी थी, और इसने बाद में ये चीज़ कंफर्म की पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर। जब इसने देखा था तो इसने देखा कि वो 1890s का न्यूज़पेपर था जहाँ पर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के ऊपर न्यूज़ आई थी। और डेट क्या था, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसको भूलना नहीं है, आपने एकदम रट लेना है। 1894 11 जून ये उसकी डेट थी, न्यूज़पेपर पे ये डेट पड़ी हुई थी। अब ये टिकट विंडो की तरफ घूमे कि भाई चलो थर्ड लेवल पे मैं पहुंच गया हूँ, लग रहा है कंफर्म हो गई कि थर्ड लेवल पे हूँ मैं, सेकंड लेवल पे नहीं हूँ। तो अब मैं टिकट्स बाई कर लेता हूँ, और ऐसा करता हूँ कि लुइसा और मैं दोनों मिलकर के यूनाइटेड स्टेट्स चले जाते हैं, 1894 में देख के आते हैं। तो ये गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए इन्होंने सोचा कि 2 टिकट्स ले लेते हैं। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या कभी आप गेल्सबर्ग गए हैं। तो ये बच्चों पूरा गेल्सबर्ग्स का डिस्क्रिप्शन है, इसको बहुत ध्यान देना है आपने, ठीक है, स्पेशली ये लाइनें कुछ। तो गेल्सबर्ग एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है, बड़ी ओल्ड फ्रेम हाउसेस हैं वहाँ पर, और ह्यूज लॉन्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, उन पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियाँ हैं जो लटकती रहती हैं, इतनी ज़्यादा लटकती हैं और स्ट्रीट्स पे इतनी फैली होती हैं कि पूरे छज्जे की तरह वो टहनियाँ आपके सर पर होती हैं। 1894 में समर इवनिंग्स बहुत खूबसूरत होती हैं, लंबी होती हैं, लोग अपने लॉन्स में बैठ करके एंजॉय करते हैं। जो मेन हैं वो सिगार्स, जो है पुरुष, वो सिगार्स पीते हैं, बातें कर रहे होते हैं। उनकी वाइफ्स जो होती हैं वो, उस ज़माने में पंखे नहीं होते थे, हाथ वाले पंखे होते थे, हाथ से चलाने वाले पाम लीफ फैंस, वो चला रही हैं। और थोड़ी देर के बाद कुछ फायर फ्लाइज जो है अगल बगल उड़ती हुई नज़र आती हैं। तो ये डिस्क्राइब कर रहा है गेल्सबर्ग जब बहुत ही पीसफुल हुआ करता था, ठीक है। अब पीसफुल तो था, क्यों पीसफुल वर्ल्ड था, क्योंकि देखिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, इस पर बहुत ध्यान देना है आपने, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 साल दूर था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 40 साल दूर था। यानी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 1890s की, ठीक है। यहाँ पर्टिकुलरली 1894 है, 1890s की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पर 94 है, ठीक। तो हमारा पहला वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1915 में, और दूसरा 19
40s में। तो आप देख सकते हैं कितने का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो इन्हें 2 टिकट चाहिए थी। खैर ये 2 टिकट लेने गए अपनी पत्नी का के साथ, इन्होंने प्लान बना लिया कि भाई चलो चलेंगे। उसके बाद से जैसे ही क्लर्क ने फिगर बताया, अमाउंट बताया, ये उनके फैंसी हैड बैंड की तरफ देखने लगे। खैर इसके पास इतना पैसा था कि 2 कोच टिकट्स का एक तरफ का किराया तो कर ही लेता। इसने जैसे ही वो पैसा काउंट करना शुरू किया, क्लर्क उसकी तरफ घूरने लगा, वो बिल्स यानी नोट को देखने लगा। उसने कहा अरे ये नहीं चलेंगे मिस्टर, मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। और वो कैश ड्रॉर में जब झांक के देखा चार्ली ने, अरे भाई ये तो नोट गड़बड़ है, ये तो पुराने ज़माने के नोट लग रहे हैं ड्रॉर में, और मैं तो इस ज़माने का ले गया हूँ। तो खैर पुराने ज़माने वाले जो पैसे थे, वो ओल्ड स्टाइल बिल, वो आजकल के नोटों से आधे हुआ करते थे देखने में, साइज में डिफरेंट थे देखने में। तो ये तुरंत घूमा और तेज़ी से वहाँ से भागा, क्योंकि भैया 1894 की जेलें भी अच्छी नहीं होती, जेल नहीं जाना चाहता था ये। तो ये हुआ। अब अगले दिन उसी रास्ते से गया, इसलिए लगा आज जरूर जाऊंगा मैं, टिकट्स खरीदनी है मुझे, आज सारा इंतजाम करके आया था ये। और लंच आवर में इसने क्या किया, $300 निकाल लिए बैंक से। और तो पुराने ज़माने में भाई इतनी करेंसी बहुत होती थी, ठीक है। अब ये ब्रैकेट में क्यों दिया है ये मैं लास्ट में बताऊंगी, अदरवाइज पूरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो इसको टेंशन बिल्कुल नहीं थी। आप पुराने पैसे ले सकते हैं कॉइन डीलर से, नए पैसे उसको दे करके, थोड़ा प्रीमियम चार्जेस लगते थे। तो इसके $300 जो है इसके पास बदले में पुराने ज़माने के $200 इसको मिल गए। उसको चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उस ज़माने में 1890s में अंडे सिर्फ 13 सेंट्स के हुआ करते थे, 1 दर्जन 13 सेंट्स में मिल जाते थे। तो बड़े सस्ती, हर चीज़ बड़ी सस्ती थी। लेकिन ये ढूंढने लगा, इसे कॉरिडोर मिला ही नहीं। भाई वो 3rd लेवल नहीं मिला, कहाँ गायब हो गया। उसके बाद इसने कई बार कोशिश की, लुइसा बहुत परेशान रहने लगी कि ये क्या करता रहता है। और वो उसने सख्त मुझे कह दिया, निर्देश दे दिया कि भाई अब तुम 3rd लेवल पर नहीं जाओगे। फिर इसने जाना बंद कर दिया। अब ये अपनी स्टैम्प कलेक्शन की आदत पर वापस आ गया। और अब हो क्या रहा है, अब हो ये रहा है कि हम दोनों के दोनों हर वीकेंड जाकर उस 3rd लेवल को ढूंढते हैं। दोनों के दोनों मतलब चार्ली और उसकी पत्नी। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब उन्हें प्रूफ मिल चुका है भाई कि 3rd लेवल है। और वो प्रूफ कैसे मिला, क्योंकि उनका फ्रेंड जो है सैम वीनर, वो डिसअपियर हो गया। ये सैम वीनर वही है साइकेट्रिस्ट, और कोई नहीं जानता कहाँ चला गया। और सैम एक शहर का लड़का था, और मैं अक्सर उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था। और आई वेंट टू स्कूल देयर। इन्होंने बताया कि मैं स्कूल गेल्सबर्ग में अपने दादाजी के पास रहता था, स्कूल जाया करता था वहाँ। और इसको जो है वहाँ की आवाज़, वहाँ की शांति बहुत पसंद थी। तो अब इसकी समझ में आ गया, ओहो अब सैम वीनर जो है वो 1890s में पहुंच चुका है गेल्सबर्ग। कैसे? बिकॉज एक रात ये अपने स्टैम्प कलेक्शन वाले जो सारा बंडल था उसको देख रहा था, चेक कर रहा था। और आप ऑलरेडी जानते हैं बच्चों की फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पीछे अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और यहाँ अच्छे से डेफिनेशन भी दी हुई है ना। तो इसको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हाँ, मैं दोबारा इसको नहीं बता रही हूँ। उसके बाद से हम चलते हैं कि तो ये स्टैम्प पोस्ट मार्क जो ये प्रूफ कर देता था कि भाई एनवेलप किस दिन खरीदा गया है। तो ये ऐसे जब देख रहा था इन चीज़ों को, तो इसने जब ओपन किया तो ये देखता क्या है कि एनवेलप में नॉर्मली ब्लैंक पेपर्स रहते थे, लेकिन उस दिन ब्लैंक पेपर नहीं था। उस रात
एक सेकंड बच्चों। सो चिल्ड्रन, हम इस पे थे कि फर्स्ट डे कवर्स के बारे में बता चुकी। तो आज की रात इसने क्या देखा कि जब वो फर्स्ट डे कवर्स में से जो निकला आपका, वो खाली नहीं था, उसमें कुछ लिखा हुआ था। खैर वो तो बाद में है, पहले ये सुन लीजिए कि किसी ने उसको मेरे दादाजी के एड्रेस पर मेल किया था, यानी पोस्ट किया था। एड्रेस जो है मेरे दादाजी का था और उस पर पोस्ट मार्क जो था वो क्या डेट दिखा रहा था, बहुत इम्पोर्टेंट, 1894 जुलाई 18। और तो ये 6 सेंट का वो स्टैम्प था, डार्क ब्राउन कलर का, उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड की फोटोग्राफ थी। तो नेचुरली ये एनवेलप मेरा नहीं था, मेरे ग्रैंड डैड का था और उनकी कलेक्शन में था। और जब वो बाद में अपनी कलेक्शन इनको दे गए तो आज इनके पास है। तो इसने जैसे ही वो खोला और इसको ओपन किया, अंदर कुछ मिला, एक पेपर ब्लैंक नहीं था। नॉर्मली लोग ब्लैंक पेपर रखते थे, ठीक है, लेकिन ये पेपर ब्लैंक नहीं था भाई। उसमें एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। तो ये है एक चिट्ठी और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये एड्रेस लिखा है, चार्ली को ये चिट्ठी लिखी है। किसने लिखा है? सैम ने लिखा है। जरा पढ़ें क्या है इसमें कि तुम सही हो सैम, और बिल्कुल बिलीव करते रहना, ढूंढते रहना चार्ली। और मैंने 3rd लेवल पता कर लिया है। मैं यहाँ पिछले 2 हफ्तों से हूँ, यहाँ डेलीज स्ट्रीट में हूँ फिलहाल। कोई पियानो बजा रहा है, फ्रंट पोर्च पे गाने की आवाज़ आ रही है, गाने की वर्डिंग्स हैं, सीइंग नेली होम। मुझे लेमोनेड पर इनवाइट किया गया है। तो चार्ली और लुइसा आ जाओ, कीप लुकिंग फॉर इट, उसको ढूंढते रहो जब तक 3rd लेवल मिल ना जाए। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी, यानी है। तो सैम महाशय वहाँ पहुँच गए। अब इसको विश्वास नहीं हुआ, तो इसने कंफर्म कैसे किया चार्ली ने? ये उसी कॉइन डीलर के पास गया जहाँ ये खुद नोट बदलने गया था। पता पड़ा कि भाई सैम महोदय तो $800 के बदले पुरानी करेंसी ले गए हैं। और वहाँ पर उसने अपना जो है हे का बिजनेस कर लिया है, जो चारा होता है, फीड और ग्रेन का बिजनेस कर लिया है, जानवरों का चारा। He always said that's what he really wished he could do। और वो अक्सर कहा करता था कि काश ये कुछ और कर पाता, ये कर पाता मैं। और ऑब्वियसली अपने पुराने बिजनेस में, पुराने से मतलब जो नए समय का जो बिजनेस था, उसका क्या बिजनेस था भाई वो? He was a psychiatrist। तो उस जमाने में तो इतनी प्रॉब्लम्स ही नहीं होती थी कि साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स की जरूरत पड़े। तो इसलिए जो है उसका कोई मतलब नहीं था। तो लेकिन गेल्सबर्ग में साइकेट्रिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, उस ज़माने में कोई ज़रूरत नहीं थी, 1894 में कोई ज़रूरत नहीं थी। तो भाई पुराना बिजनेस छोड़ना पड़ेगा ना। तो नया बिजनेस क्या है? हे का बिजनेस, फीड का, ग्रेन का बिजनेस। तो ये है सैम, और सैम है उनके साइकेट्रिस्ट कम फ्रेंड, जिन्होंने खुद एडवाइस किया था। खुद वो बोल रहे थे कि जो है आप इस तरीके से रियलिटी से बचना चाहते हैं, ये इट इज़ अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन और ऑल दैट। तो बच्चों, विद दैट द चैप्टर इज़ ओवर। और अब मैं आपसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी इनमें, जिसमें SAQ है, LAQ है। और चूँकि चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी हर लाइन पढ़ना आपने बहुत ज़रूरी है। और अगर फिर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स लिखिए, मैं उसे क्लैरिफाई करूँगी। और मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करिए अगर आपको लगता है ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचना चाहिए, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।
Until then, bye bye.